हम स्वच्छता के वार्षिक उत्सव स्वच्छता ही सेवा 2023 के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं परम आदरणीय कैबिनेट मंत्री महोदय श्री गिरिराज सिंह जी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। हम स्वागत करते हैं परम आदरणीय कैबिनेट मंत्री महोदय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मंत्रालय। आपके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। हम स्वागत करते हैं परम आदरणीय कैबिनेट मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। आप स्वच्छता में हमेशा से हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम स्वागत करते हैं परम आदरणीय राज्य मंत्री जी श्री कौशल किशोर जी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। परम आदरणीय राज्य मंत्री श्री विशेश्वर टूडू जी, जल शक्ति मंत्रालय। हम आप सभी परम आदरणीय मंत्री महोदयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम स्वागत करते हैं आदरणीय सचिव श्रीमती विनी महाजन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। आदरणीय सचिव श्री मनोज जोशी, आवासन शहरी कार्य मंत्रालय। आदरणीय सचिव श्री शैलेश सिंह, ग्रामीण विकास विभाग। हम स्वागत करते हैं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के आदरणीय सचिव एवं वरीय पदाधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए नगर विकास एवं स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिवगण, प्रधान सचिव, सचिव, स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं ग्रामीण के मिशन निदेशक, जिलों से जुड़े हुए वरीय जिला पदाधिकारीगण, सभी नगर निगम के कमिश्नर्स एवं पंचायतों से जुड़े हुए विभिन्न स्तरों के पदाधिकारीगण, आप सभी का स्वच्छता के वार्षिक उत्सव स्वच्छता ही सेवा 2023 में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले स्वागत संबोधन के लिए निवेदन करते हैं आदरणीय सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्रीमती विनी महाजन जी से। अच्छा देखते हैं सर। I welcome the honorable ministers, Shri Giriraj Singh ji, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Shri Hardeep Singh Puri ji, the ministers of state, Shri Kaushal Kishore ji, Shri Visheshwar Tudu ji, Shri Prahlad Singh Patel ji, and the secretaries from Government of India, but most importantly, our colleagues from the states, from the various ministries and departments dealing with Swachhta, and our colleagues from the districts, district collectors and commissioners, corporation, other senior officers from the field who have joined us today in this festival, Swachhta hi Seva, which we conduct annually during the fortnight 15 September onwards, culminating in Gandhi Jayanti. And with the permission of the Honourable Ministers, I'll make a very brief presentation just outlining our expectations from our colleagues in the states. The presentation, please. This year's theme for Swachhta hi Seva is Garbage Free Bharat, कचरा मुक्त भारत। और इसके चलते हम आप सबसे अनुरोध करते हैं, प्लीज फोकस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन अ बिग वे। दैट हैज बीन द फोकस ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल from 2014 onwards, when we first initiated the efforts to make India clean and open defecation free. Lot of efforts have been made over these years, and now for this fortnight we request you again to please bring back the element of community participation, Jan Andolan ko samne leke aaye, and Shramdan, which is the key theme for this fortnight. But in this effort, we would request you all to look at issues around Sampurna Swachhta. We went over 2014 to 2019 in a massive effort to make India open defecation free. A large number of toilets were made. Behavioral change communication efforts resulted in our country being declared ODF. Now we have to maintain the ODF status and also move beyond towards comprehensive solid and liquid waste management, making a Sampurna Swachh Bharat. We request that the whole of government approach may be adopted, just as Government of India is doing. The state governments, the UTs may also ensure that all their departments, all agencies, private also, the private sector, the NGO sector, civil society, all needs to be brought together. We would request that 17th September, the coming Sunday, be celebrated as we have been doing in the past as Seva Divas. A massive effort for a Swachhta hour on October 1st, and of course Gandhi Jayanti 2nd October, Swachh Bharat Divas. We request you all to focus on these days. Next. For the theme of Garbage Free Bharat, we would request that the focus on actual cleanliness drives are the core activities with Shramdan as the basic component, community engagement,
but also we would request the administrations to please bring in a spirit of competition to ensure that all sections of society participate and to recognize them in their efforts at various occasions. Today we have the launch by the Honorable Ministers, but we will look forward to the leadership in the states and in particular in the districts of the district collectors and in the towns and cities of the commissioners of the corporation and other senior functionaries on ground. Next. With the efforts towards visible cleanliness, let us also make sure that we give due recognition and respect to the Safai Mitras, the sanitation workers who have been diligently carrying out these tasks. Please let's make sure that we focus our cleanliness drives on high footfall places. These would be spots of tourist interest, cultural interest, along riverbanks, places where people congregate in large numbers, railway stations, bus stands, and so on. And let's make sure that we do away with legacy waste sites and free our towns, cities and villages of garbage. There are a lot of sanitation assets which have been created in the past few years. Please focus on their repair, painting, cleaning and branding, and let us make sure that these become also the fulcrum of various activities. Next. Mass mobilization will be key to our success in these efforts if we want people to really associate in a big way. Please carry out, as you've been doing in the past, samvads, Swachhta pledges, quizzes, Swachhta run, rallies and other activities. Involve the women's self-help groups. Please make sure you document the work properly through good quality photography and videography. And a Swachhta Seva portal has been developed and we request you to upload at the village and town and city level the activities that are done so that the people who are participating in these receive due recognition. Next. Swachhta Sunday, we would request that the coming Sundays, the 17th of September and thereafter up till the 1st of October, there are also many days of great national and international importance. Today is Engineers Day. Let's get all our engineers to think about and work on Swachhta. On World Tourism Day and World Maritime Day, World Awareness Day on Food Waste. All of these days are very relevant. Let's look at these days. Let's make sure that there is involvement of all stakeholders, whether it's the chambers of commerce and industry or various trader associations and indeed Red Cross and other NGOs. Religious leaders can play a very important role. We request you to reach out to them and request them to lead drives and to give this message to the people in their area. Next. We hope that the state government and their subordinate officers will ensure that there is complete participation. Please make sure that social media is used for the messaging, awareness campaigns will be crucial. And please make sure that there are organized ways, including cultural events, to promote the Swachhta activities. Next. We just want to recognize our partner ministries and departments in the Government of India. All these and more are going to be making strong efforts on ground. We request the states and UTs to similarly ensure that all the relevant ministries and departments participate in this. With that, I thank you for your patient listening. Thank you, ma'am. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं स्वच्छता के वार्षिक उत्सव स्वच्छता ही सेवा लिरिकल एंथम को। एक और कदम हम लेके बढ़े, एक लक्ष्य नया हम लेके चले, कूड़ा मुक्त यह देश बने, फिर से इरादा चलो करें। हमें स्वच्छ नया कल करना है, कचरे पर ध्यान तो देना है। सूखा गीला हो अलग अलग जिम्मेदार सभी को रहना है, जिम्मेदार सभी को रहना है। सब साथ जुड़े सब साथ चले, अब ठान लिया चलो करके रहे। एक और कदम हम लेके बढ़े, एक लक्ष्य नया हम लेके चले, कूड़ा मुक्त यह देश बने, फिर से इरादा चलो करे।
कर उज्जवल पूरे देश को निर्मल करना है। शुरुआत हम ही से होनी है, आरंभ हम ही से होना है। हम सबको मिलकर साथ साथ एक परिवर्तन को बोना है। एक और कदम हम लेके बढ़े, एक लक्ष्य नया हम लेके चले। कूड़ा मुक्त यह देश बने, फिर से इरादा चलो करे। हर गांव स्वच्छ स्वच्छ, हर शहर स्वच्छ स्वच्छ, हर सफर स्वच्छ स्वच्छ, हर पहर स्वच्छ। चलो संग संग सूरज बन के जले। एक और कदम हम लेके बढ़े, एक लक्ष्य नया हम लेके चले। कूड़ा मुक्त यह देश बने, फिर से इरादा चलो करे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम सीधे जुड़ रहे हैं परम आदरणीय मंत्री महोदयों से संवाद के लिए। परम आदरणीय कैबिनेट मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह पुरी जी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से संवाद में सीधे जुड़ रहे हैं। श्री स्टैंजिन रैम्बेस, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेह म्युनिसिपल काउंसिल, लद्दाख। हम मंत्री जी महोदय से संवाद के लिए अनुरोध करते हैं। Sir, English, what do you want? What Sir, any language, would you sir. like me to? English? Sir, I'm comfortable with any language, sir. Oh, that's very nice. I mean, so okay, let's keep it between Hindi and English. Okay. मुझे ये बताया गया कि आपने अभी रिसेंटली एक 15 मिनट का कार्यक्रम किया लाइट्स ऑफ का अक्रॉस द सिटी टू सेव एनर्जी एंड एज अ ट्रिब्यूट टू इंडियन स्वच्छता लीग 2.0। जब मुझे इसके बारे में जानकारी मिली, आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज अ वेरी इनोवेटिव स्टेप। तो मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। आप और क्या कदम सोच रहे हैं? व्हाट आर द स्टेप्स आर यू थिंकिंग ऑफ इन ऑर्डर टू सचिव विनी महाजन जी हमें बता रही थी कि आने वाले इस पखवाड़े के दौरान और जब हम इस सेलिब्रेशन के अलग अलग चीजें कर सकते हैं, पर आप और कौन से इनोवेटिव स्टेप्स सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं आपसे पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि हमारे साथ इस समय सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, म्युनिसिपल कमिश्नर्स भी जुड़े हुए हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ गुड लेबोरेटरी फॉर क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज। बताइए। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, सबसे पहले तो इंडियन स्वच्छता लीग में ले म्युनिसिपैलिटी बहुत सारी इनिशिएटिव्स के साथ सर ऑलरेडी हमने एक्टिविटी शुरू की है फ्रॉम 11th of September। और ज्यादा सर हम लोग फोकस कर रहे हैं ऑन 3 R's सर, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल ऑफ वेस्ट। तो हमारा फोकस है सर जितने भी जो हमारे टाउन में, शहर में जितने भी जो सिटीजन्स, टूरिस्ट हैं, उनको अवेयरनेस दे कि कैसे वेस्ट को मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है। क्योंकि सर साथ ही साथ इस काम के ऊपर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दे कि कैसे आप लोग वेस्ट को सोर्स लेवल पे सेग्रीगेट करें। अगर सोर्स लेवल पे अगर सेग्रीगेट होता है तो हमारा काम 50% घर के हाउस होल्ड लेवल पे ही खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ साथ सर और भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम हमारे सर यहाँ पे ले टाउन में जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके थ्रू भी सर हम यहाँ पे जो शॉप्स में जो कैरी बैग्स, जो प्लास्टिक कैरी बैग्स जो यहाँ पे भेजे जाते हैं, तो उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू जो टेक्सटाइल्स, जो फैब्रिक वेस्ट आता है, तो वेस्ट कलेक्ट करके हम सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके थ्रू उनको सर टेलरिंग का हम थोड़ा सा यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उनके थ्रू बैग्स, क्लोथ बैग हम यहाँ पे बनवा रहे हैं सर। तो आने वाले टाइम में हम शॉपकीपर्स को वो वाले बैग्स हम वो करेंगे सर, स्प्रे करेंगे। धन्यवाद। ये जो आपने सर्कुलर इकोनॉमी की बात की, रिड्यूस, रिसाइकल, मैं आपसे
आपको उसके लिए दैट शुड बी इनकरेज। पर बाकी जो आपने स्टेप्स बताए, सेग्रीगेशन एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, वो आपका कितने प्रतिशत हो रहा है रफली? और दूसरा, आपको ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के लिए वेट वेस्ट को कंपोस्ट बनाना, ड्राई वेस्ट को ले जाना, और आपके यहाँ जितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें कितना प्रतिशत रीप्रोसेस कर पाते हैं? और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला था, उस समय देश भर में शायद 15-16% ही वेस्ट जो है रीप्रोसेस होता था। आज हम उसको लेके कहीं 76% तक शायद पहुंच गए हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि जैसे हमारे सारे राज्य हैं वहां पे सेग्रीगेशन होनी चाहिए 100%, और वेट वेस्ट से कंपोस्ट बनाने में भी मैं समझता हूं इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उसको टू क्रिएट इट इनटू वेल्थ, वो भी आसानी से हो सकता है। रीप्रोसेसिंग जो है वो कितनी होती है, उस पर अभी हमें थोड़ी सी जानकारी दे दें तो, क्योंकि इस समय इस डिस्कशन की रेजोनेंस तो बाकी यूएलबीज में, बाकी म्युनिसिपल कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में होगी, क्योंकि मैं सबके साथ तो चर्चा नहीं कर पाऊंगा। पर आप हमारा जो कॉन्वर्सेशन है, इट हैज इक्वल एप्लीकेबिलिटी इन द केस ऑफ ऑल दोज जो हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। जी सर, वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए तो ऑलरेडी म्युनिसिपैलिटी ने स्वच्छ भारत मिशन 1 के तहत सर हमने जितने भी जो लेह में हाउस होल्ड हैं उनको 2 डस्टबिन हमने प्रोवाइड किए हैं सर, ताकि वो लोग सोर्स लेवल पे ही वेस्ट को सेग्रीगेट करें। तो ये तो काफी टाइम से चलता आ रहा है सर, और हम इंश्योर कर रहे हैं कि जितना भी जो वेस्ट सेग्रीगेट हो रहा है वो डेली 100% कलेक्शन डेली बेसिस पे है। और साथ ही साथ सर हमारे यहाँ पे 30 टन कैपेसिटी का जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, तो वहां पे 10 टन कैपेसिटी इज फॉर वेट वेस्ट। तो वेट वेस्ट का भी हम यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसका भी सर कंपोस्ट बन रहा है। और बाकी सर जितने भी जो वेस्ट प्लांट पे जो हमारा आता है ड्राई वेस्ट, तो उसको हम डिफरेंट फ्रैक्शंस में उसको फर्दर सेग्रीगेट करते हैं कि उससे कितना हम जो वैल्यू रिकवर कर सकते हैं, और उनको सर बेल करके फिर हम रिसाइकलर्स को करें, क्योंकि एज सच अभी ले में कोई रिसाइकलिंग यूनिट या कोई कंपनी नहीं है सर, तो इसीलिए हमें उनको जम्मू में बेचना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं आई अप्रिशिएट आपके यहाँ जो स्थिति है, इट्स लिटिल स्पेशल, और आपके यहाँ टूरिज्म भी बढ़ रहा है। तो टूरिज्म बढ़ने के कारण ये जो आपकी सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट है, इस पे थोड़ा सा आप बाकियों से भी कंसल्ट करिए। मैं भी, हमारे मंत्रालय में सचिव हैं मनोज जी, ये भी आपसे मैं बात करेंगे, एंड लेटर मे बी वी कैन कम अप विद सम इंटरेस्टिंग आइडियाज टू हाउ टू मैनेज द सिचुएशन, बिकॉज अभी तो आई थिंक योर्स इज अ हैप्पी सिचुएशन, पर जब जैसे टूरिज्म बढ़ता है और बाकी एक्टिविटीज बढ़ती है, मैं नहीं चाहूंगा कि आपकी स्थिति भी वैसे ही हो जाए जैसे बाकी अर्बन सेंटर्स का। ऑल्दो वी आर मेकिंग प्रोग्रेस देयर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 साल में हम 100% वेस्ट प्रोसेसिंग तक भी पहुंच जाएंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, एज दे से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री शेखर सिंह, म्युनिसिपल कमिश्नर पिपरी चिंचवाड़ महाराज से अपने अनुभव शेयर करने का अनुरोध करते हैं। शेखर सिंह जी, नमस्कार सर। नमस्कार। अभी हाल में ही आपके यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का शायद उद्घाटन किया था, और आप हमें बता सकें उससे क्या आपके यहाँ ग्राउंड लेवल पे क्या आपको एडवांटेजेस लग रहे हैं, कितना आप कर पा रहे हैं, और इसमें अभी क्या कसर और है जो वेस्ट प्रोसेसिंग का गैप है, दैट इज द डिफरेंशियल बिटवीन द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट विच इज साइंटिफिकली प्रोसेस्ड। बताइए जरा उसके बारे।
राइट सर। सर पीसीएमसी में सर हमारे यहाँ पे ओवरऑल करीब सर 1200 मेट्रिक टन डेली हमारा वेस्ट प्रोडक्शन है सर। उसमें ऑलमोस्ट 700 मेट्रिक टन सर हमारा सूखा कचरा जो है ड्राई वेस्ट है। तो सर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सर 1 अगस्त को इस 14 मेगावाट का सर हमारा वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट है सर। इट्स बेस्ड ऑन हिताचीज टेक्नोलॉजी सर। इसमें सर एक महत्वपूर्ण अंग था कि पीपीपी स्तर पे हमने सर इसको प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया है। पावर परचेज एग्रीमेंट नेक्स्ट 21 ईयर्स के लिए करके लिया है सर। इसमें जो एक थोड़ा अलग चीज है डेफिनेटली सर, जैसे आपने बोला सिटी के लिए सबसे बड़ा फायदा है कि जो सूखा कचरा 700 मेट्रिक टन प्रोड्यूस हो रहा है सर, उसको हम डेली अब उसको हम प्रोसेस कर पाएंगे और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे। जो एक सर इसमें यूनिक चीज है इस प्रोजेक्ट में कि जो 14 मेगावाट एनर्जी सर प्रोड्यूस हो रही है सर, दैट एंटायर एनर्जी वी आर यूजिंग थ्रू आवर डेडिकेटेड एक्सप्रेस फीडर नेटवर्क to provide electricity to our STPs directly. So we are not, it's not a power purchase agreement with the utility. सर हमारे सारे के सारे STPs हमने इस पे 14 मेगावाट पे कन्वर्ट कर लिया है सर। इसके अलावा सर इसमें करीब 3 MLD वाटर जो हमारे को प्रोसेसिंग में सर यूज होने वाला है, वो भी हमारा सर टर्जरी ट्रीटेड जो STP है सर, वो टर्जरी ट्रीटेड STP का पानी ही हम इसमें यूज कर रहे हैं सो दैट एंड टू एंड सर हमारा पूरा क्लीन एंड ग्रीन एक साइकिल और सर्कुलर इकोनॉमी वी कैन से वी आर एबल टू लेवरेज इन दिस थिंग सर। जैसे आपने बोला सर इसमें आगे क्या किया जा सकता है सर, एक तो जो हमारे लिए एक अच्छी चीज है कि जब हमने इसको डिजाइन किया था 2018 में सर, दैट टाइम सेग्रीगेशन परसेंटेज वाज लिटिल लोअर सर। करंटली आवर सेग्रीगेशन परसेंटेज इज अबव 95%। सो जो एक हमारे लिए सर जो हमारे लिए हार्टनिंग चीज है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू हमारे सूखा कचरा का हमने अज्यूम किया था उससे कहीं बेहतर कैलोरीफिक वैल्यू हमारे को मिल रहा है, विच इज ऑल्सो इंडिकेटर दैट द सेग्रीगेशन इज मच बेटर सर। आगे के स्टेप्स में जो सर जो गैसेस हैं सर उनको तो हम ट्रैप कर रहे हैं इसमें। जो CO2 रिलीज होता है सर, प्रोबेबली गोइंग फॉरवर्ड न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग विद रिगार्ड्स टू एल्गल बायोमास। अगर हम उसको यूज करके एल्गल बायोमास में कन्वर्ट कर पाएंगे सर, आगे एक वो हमारा प्लान है जो हमारे को अभी इंप्लीमेंट करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर इसमें जो हीट एमिनेट होती है उसको हीट पंप के द्वारा यूज करके, जैसे बहुत नॉर्डिक कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज उसको डिस्ट्रिक्ट हीटिंग के लिए यूज करते हैं सर। इसी प्लांट के काफी पास हमारा एक काफी बड़ा कन्वेंशन सेंटर आ रहा है, तो वी आर एक्सप्लोरिंग द टेक्नोलॉजी के इस हीट पंप से रिवर्स प्रोसेस करके सर हम उसको कूलिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। एंड दैट वुड बी अनदर वैल्यू एडिशन के जो भी इसमें से चीज हमारे को मिल पा रही है सर, हम उसको यूज कर पाएंगे। एंड गोइंग फॉरवर्ड सर वी वुड डेफिनेटली नीड अनदर प्लांट इफ वी थिंक अबाउट नेक्स्ट 5 to 10 years for the city, and I think that is again something that we are now started to work on after the inauguration and commissioning of this plant, sir. Thank you very much, Shekhar Singh ji. I have 3 short comments. First, Yes, we are not only in Maharashtra, not only in PCMC, but throughout the country. It is going to be a constant race between how much waste we produce and how much we are able to process. And I think the purpose of having, senior ministers like गिरिराज जी और शेखावत जी और हमारे बाकी कॉलीग्स ज्वाइन, इसके हम सबको साथ मिलकर हमें सिस्टम्स ऐसे डिवाइस करने हैं दैट दिस इज अ बैटल वी डोंट लूज। क्योंकि 2014 में क्या हमारी स्थिति थी कि 15-16% जो कचरा हम प्रोड्यूस करते थे वही 14-15-16%। मैं इसलिए परसेंटेज पे इतना श्योर नहीं हूं क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं वो स्टेट्स ने जो हमें बताया, और हर एक स्टेट कहती है वो ज्यादा अच्छा कर रही है, तो कहते हैं 17-18%, मुझे लगता है 14-15% से ज्यादा वेस्ट प्रोसेस नहीं हो रहा। नंबर 1। सेकेंड, सेग्रीगेशन एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। आपने कहा आपका 90% से ऊपर है, माफ कीजिए, आई एडमायर द वर्क यू आर डूइंग, दिस शुड बी 100%। सेग्रीगेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सेग्रीगेशन में इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ मोबिलाइजिंग, प्रचार, और सबको मिलकर कर लीजिए। तीसरी बात, मैं समझता हूं कि आप अपनी पब्लिक को, अपने स्टूडेंट्स को, इनको मिला के, इनको जोड़ के देखिए, ये स्वच्छता का जो आंदोलन है, ये मैं समझता हूं हमारी सारी अर्बन स्कीम्स और हमारी रूरल स्कीम, सबका फलक्रम है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? इसलिए क्योंकि ये एक सरकारी योजना से चलकर ये एक जन आंदोलन बन गया, और जन आंदोलन को
उसका मोमेंटम मेंटेन करने के लिए आई थिंक वी नीड द पब्लिक. दैट इज व्हाई दिस टाइम ऑल्सो आई थिंक आवर इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर. क्लोज रूम्स में इंस्टेड ऑफ हैविंग सेलिब्रेशन, लेट्स हैव लैक्स ऑफ फंक्शंस इन एक्चुअल एरियाज. देखिए अभी भी मैं आई डू अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक टूरिंग, अभी भी मैं देखता हूं अच्छा लग रहा है पर बड़े गैप्स हैं. तो मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को, स्टूडेंट्स को ज्यादा इनके साथ जोड़िए. एंड माय थर्ड पॉइंट इज, देखिए नॉट ओनली आपके यहां, सब जगह जो भी सरकार की तरफ से या यूएलबी की तरफ से जो वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स बन रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका जो असली लाभ है वो हमारे every citizen of India will realize. And I think we should be able to set up waste processing plants with their own economic viability in the private sector or with a partnership. तो आप उस पे भी, आपको और हमारे साथ जो बाकी जुड़े हुए हैं हमारे अधिकारीगण, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लेट्स थिंक ऑफ न्यू मॉडल्स वेयर बाय वी कैन ब्रिंग इन मोर वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज यूजिंग plant and equipment which is locally available, tying it to my waste to wealth, to biogas, to other जो हमारे दूसरे मेरे मंत्रालय के जो कार्यक्रम है. मुझे पूरा यकीन है आप जैसे लोग ग्राउंड लेवल पे करेंगे, इसमें सफलता हमें 100% मिलेगी. थैंक यू वेरी मच. राइट सर, थैंक यू सर. अपने अनुभव साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम संबोधन के लिए अनुरोध करते हैं परम आदरणीय कैबिनेट मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह पुरी जी. आवासन चाहिए. नो, थैंक यू वेरी मच. मेरे कार्यक्रम जो मुझे दिया गया था, आई थॉट वी हैड सम मोर इंटरैक्शंस, बट वो शायद हमारे में कुछ कमी है कि थोड़ा हमने ज्यादा समय ले लिया पहले दो में ही. बट मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा. मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ साथी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्री गिरिराज सिंह जी, कौशल किशोर जी, विशेश्वर टूडू जी, सेक्रेटरी विनी महाजन जी, हमारे सेक्रेटरी मंत्रालय में मनोज जोशी जी, ऑल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स एंड म्युनिसिपल कमिश्नर्स हु हैव जॉइंड अस वर्चुअली, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं. एंड मुझे पर्सनली बड़ी खुशी है कि एट द लॉन्च ऑफ दिस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट स्वच्छता, हम आपसे वी आर ऑल जॉइंड टुगेदर इवन दो वर्चुअली. आई वुड हैव प्रेफर्ड टू हैव माय ब्रदर्स गिरिराज जी एंड गजेंद्र सिंह जी, पर मुझे पता है दे आर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैरिंग आउट इंपॉर्टेंट मिशंस. सो टुडे वी विल मीट वर्चुअली. देखिए, today is as good an occasion as any to reflect back on what, under the visionary leadership of Pradhan Mantri ji, Narendra Modi ji, we have been able to do in 9 years. मुझे याद है 15 अगस्त 2014 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने addressing the nation from the ramparts of the Red Fort, लाल किले पे, उन्होंने ये कहा था कि द बेस्ट ट्रिब्यूट वी कैन पे टू द फादर ऑफ द नेशन इज कि जब हम उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें. वो बात कर रहे थे 2 अक्टूबर 2019 की, और ये बात कर रहे थे 15 अगस्त 2014 को. दैट इज 5 years and a few months from them. अगर हम ये कह सके कि वी आर ओपन डेफिकेशन फ्री, दैट इज द बेस्ट ट्रिब्यूट. द रेस्ट इज हिस्ट्री. मैं हिस्ट्री से पहले भी चला जाऊं, पहले इफ आई गो इन टू द पास्ट, आपको याद होगा ये सन था 1916 और बापूजी वाराणसी में थे. ही वॉज एड्रेसिंग अ गैदरिंग एट द बनारस हिंदू कॉलेज. तब उन्होंने ये कहा था कि स्वच्छता, उस समय स्वतंत्रता हमारे होराइजन कैनवस में नहीं थी, मैं 1916 की बात कर रहा हूं. उन्होंने ये कहा था, आई वेंट अराउंड लुकिंग फॉर गॉड इन द टेम्पल्स, और मुझे नहीं मिल पाए. व्हाट ही मेंट वाज कि सफाई विच इज इक्वल टू गॉडलीनेस, वो नहीं मिल पाई. और उसके बाद थोड़ा सा ये
मूवमेंट चली, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब दायित्व संभाला गुजरात में चीफ मिनिस्टर, देयर आर सम रिमार्केबल स्टेप्स, बट इफ यू रियली फास्ट फॉरवर्ड एट एन ऑल इंडिया लेवल, ऑल दिस रियली हैपेंड आफ्टर May 2014. और हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं आज, मैं तो अपना जो लिमिटेड हमारी मंत्रालय की कंट्रीब्यूशन है, हमने कितने शौचालय बनाए, पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, ओवरऑल जो शौचालय बने देश में 13-14 करोड़ के करीब, और देश में लेट अलोन वन स्टेट जहां पे कुछ और समस्याएं थी और वो भी अब हल हो गया है. टुडे द होल कंट्री इज ओपन डेफिकेशन फ्री. बट ये एक ऐसा महत्वपूर्ण, एंड आई कीप सेइंग कि एटलीस्ट मेरी अर्बन स्कीम में, और गजेंद्र सिंह जी विल ऑल्सो अग्री विद मी, दी स्वच्छता आंदोलन ये हमारे सारे योजनाओं का फलक्रम है. अगर स्वच्छता नहीं होगी बाकी नहीं होगा. और मैं सिर्फ एक ही चीज जिसमें मुझे थोड़ी सी चिंता होती है, हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं कि अब हमारे यहां 100% सेग्रीगेशन हो जाएगी ऑलमोस्ट. वेस्ट प्रोसेसिंग 76% है, उसको अगले 2-3 साल में हम 100% ले जाएंगे. और हम जो हमारी लेगेसी डंप साइट्स हैं, कचरे के बड़े ढेर, वहां पे जो हम रेमिडिएशन कर रहे हैं, हमारी SBM 2.0 में गार्बेज फ्री सिटीज का जो काम हो रहा है, गार्बेज फ्री इंडिया, बहुत बढ़िया चल रहा है. पर मुझे चिंता सिर्फ इस एक बात की होती है कि दिस इज समथिंग दैट रिक्वायर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड कांस्टेंट रिमाइंडिंग. बिकॉज ये जो ODF सर्टिफिकेशन भी है, ये सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं है, ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है. इसलिए हमें ये ध्यान करना होगा कि हम कुछ का, मैं कई जगह देखता हूं, एंड आई ऑल्सो फील कि कुछ हमारे देश में ऐसे इलाके हैं वेयर मैंने सचिव जी को कहा था, हमने टीम भी भेजी थी, मैं उन स्टेट्स का नाम नहीं लूंगा आज, पर उन्होंने भी कहा इन 1 or 2 places इट इज पैथेटिक. उनको कहा दे हैव अ रीजन. ऑल राइट, आई विल नॉट गो इनटू दोज नाउ. हमारे यहां इस समय 95% ऑफ द वार्ड्स हैव 100% डोर टू डोर कलेक्शन. More than 88% of the wards practice source segregation. अभी मैं अपने कॉलीग से कह रहा था जिनके 90%, मैंने इसको 100% पे ले जाइए. एंड स्वच्छता हैज बिकम ए फंडामेंटल टेनेट कि मान्य कि जो सरकार की एक योजना थी, दैट इज नाउ बिकम अ पीपल्स मूवमेंट और अ जन आंदोलन. नाउ टुडे साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट requires resources, and the urban local bodies are providing those resources. I can see that happening. And मैं ये भी कहता हूं कि अभी किसी ने मुझे बताया कि 600 करोड़ हमें अर्निंग हुई बाय सेलिंग स्क्रैप प्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज. और ये कितना, ये दाम उतना ही है, 600 करोड़ जितना चंद्रयान 3 पे लगा. आप देख सकते हैं कि वेस्ट टू वेल्थ का एक नया ये उदाहरण है. अब हमारे cities and villages are visibly cleaner. Not only solid waste, we are focused on clean water and water management. The exceptional Namami Gange scheme, Har Ghar Nal Se Jal, under the leadership of my dear friend Gajendra Singh ji, combined efforts to catch the rain in convergence with MGNREGA under the leadership of our brother Giriraj ji. We have come to moving towards ODF plus and water plus. ये जो हमारा 9th एनिवर्सरी है स्वच्छ भारत मिशन और लॉन्च ऑफ स्वच्छता ही सेवा 2023, मैं समझता हूं दिस इज अ मोमेंट फॉर सेलिब्रेशन. एंड I am very happy that my senior colleagues on all others are joined today, district magistrates and municipal commissioners. और इसमें अगले 15 दिन में throughout the country with a special focus given to riverfronts, railway stations, historical monuments and heritage sites, we will carry this Swachhta drive with greater momentum. I would also like to suggest that we unite in dedication to Swachhta with various activities such as the youth-led Swachhta League and Safai Mitra
shivers to provide all the entitled benefits to sanitation workers across the length and breadth of the country. आज जो आपने लिस्टिंग बताई विनी जी, श्रमदान से शुरू करते या वॉलंटरी लेवल से शुरू करते, I think that's a very good starting point. Because Swachhta now has to come from within us. All of us must take pride, and as I think we do in large numbers, to the beneficial effects of this Jan Andolan on everything. Land values also increase where you have cleanliness. और मुझे पूरी उम्मीद है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, which will be observed as Swachhta Divas, we will again rally to instill behavioral change. And today we can all join in this movement towards a garbage free India. बहुत बहुत धन्यवाद. माफी चाहता हूं, मैंने शायद समय कुछ ज्यादा ले लिया, बट वो गजेंद्र सिंह जी और गिरिराज जी की कंपनी में रहने के मैं आजकल थोड़ा वो मैं भी बन गया हूं पॉलिटिशियन, माइक दे दो तो ज्यादा ही बोल जाता हूं. जब मैं सिविल सर्वेंट था थोड़ा मैं टाइम कंट्रोल ज्यादा अच्छा था. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय जी का. संवाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम सीधे जुड़ रहे हैं श्री दीपक मीना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरठ, उत्तर प्रदेश से. नमस्कार सर एंड मैम, मैं जनपद मेरठ से डीएम दीपक मीना बोल रहा हूं. मैं सर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश के उन सर्वोत्तम जनपदों में से है जो 2017 में ओडीएफ घोषित हुआ था, और उसके बाद लगातार हमने हमारी 479 ग्राम पंचायतें हैं, सभी में हमने सामुदायिक शौचालय बनाए हैं और निरंतर स्वयं सहायता समूह के द्वारा उनका प्रबंधन का कार्य हो रहा है. अब जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का ओडीएफ प्लस का विजन है कि सभी ग्राम पंचायतें 2025 तक हमारी ओडीएफ प्लस रहे, उसी क्रम में हमने 278 ग्राम पंचायतों में ऑलरेडी आरआरसी सेंटर का वर्क स्टार्ट कर दिया है, और हमारी 105 ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर सेग्रीगेशन होके सभी जगह को रिसोर्स रिकवरी सेंटर पे ले जाके हम लोग उसका सेग्रीगेशन कर रहे हैं, और उसमें जो भी आमदनी ग्राम पंचायतों को हो रही है उससे एक फाइनेंशियल मॉडल जो वायबल किया है हम लोगों ने, और ग्राम पंचायतें इससे आमदनी भी कर रहे हैं. ग्रे वाटर मैनेजमेंट को लेके सर हम लोगों ने विगत वर्ष में 120 तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया, और 2000 से ऊपर हमने सिल्ट और फिल्टर चैम्बर्स हमारे उन ग्राम पंचायतों में इंस्टॉल किए हैं. फीकल और स्लज मैनेजमेंट को भी लेकर सर हमने एक 3 पक्षीय अनुबंध हमारी ग्राम पंचायतें, हमारे टैंक क्लीनर्स और हमारे एसटीपीज के साथ किया है कि कहीं भी खुले में कोई भी स्लज या फीकल वेस्ट डिस्पोज ऑफ ना हो, और सभी हमारे एसटीपीज में जाएं, जो जनपद में 14 एसटीपीज हैं. इसके अतिरिक्त सर जो 15 तारीख से 2 अक्टूबर तक हमारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है, तो इसका विस्तृत प्रोग्राम जो जन भागीदारी और जन आंदोलन को लेकर हमने पूरा सभी स्टेक होल्डर्स से, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे नीचे तक जो हमारी ग्राम पंचायतों के लोग हैं उनसे डिस्कस करके एक जारी किया है. इसमें मुख्यतः सर 17 तारीख को जैसे इंडिया स्वच्छता लीग सिटीज के लिए जारी की गई है, हम लोगों ने भी एक मेरठ स्वच्छता लीग ग्राम पंचायतों के लिए जारी की है कि जो भी प्लेसेस हाई फुटफॉल की उन सब ग्राम पंचायतों में हैं, उन सभी की बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स और बाकी परफॉर्मा और ज्यूरी हमने बनाई है, और उसी हिसाब से 2 अक्टूबर को उनको पुरस्कृत किया जाएगा. इसी क्रम में सर हमारे गंगा ग्राम हैं जो 12 हैं, और यहाँ पे एक गंगा नदी, काली नदी और हिंडन नदी है, इस पे बहुत ही वृहद कार्यक्रम सफाई का और वृक्षारोपण का, ऑलरेडी हम 2.5 लाख से ऊपर वृक्षारोपण इस सीजन में इन नदियों के अक्रॉस कर चुके हैं, पर एक कॉरिडोर गंगा के अराउंड हमने अभी 300 हेक्टेयर की लैंड इस जगह पे पूरी इंक्रोचमेंट फ्री करवाई है, तो उसको भी हम 21 तारीख पे स्वच्छता के साथ लेके एक वृहद कार्यक्रम 1 लाख पेड़ों के वृक्षारोपण का, जिसमें 20,000 से ऊपर लोगों को इन्वॉल्व करके हम लोग करवाएंगे सर. इसके अलावा सर एक दिन हमने बहुत बड़ा फिक्स किया है 28 तारीख का, जिसमें हम सभी हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स को एक एरिया देके, और उस दिन अराउंड 6 लाख बच्चे जो इन स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको सबका पार्टिसिपेशन अपने अपने एरियाज में सफाई के लिए होगा, और उनमें भी जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें भी हम लोग एक तरीके से प्रोत्साहित करेंगे सर. और 2 अक्टूबर को सर वृहद लेवल पे सभी जगह पे पंचायतें जैसे निर्देश हैं और बाकी सभी पे चर्चा की जाएगी सर. तो ये सभी प्रयास हमारे जनपद में किए जा रहे हैं सर. जनपद मेरठ को अपना कार्य यहाँ पे शेयर करने के लिए मेरठ की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ सर. धन्यवाद मीना जी. संवाद में हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं श्री मंत्री जी इंटरेक्ट. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा परमादरणीय मंत्री महोदय जी से, गिरिराज सिंह जी से.
दीपक जी, शेखा आपको के मेरी साथ। आवाज am I audible, विनी जी? जी सर। आप मेरी आवाज जा रही है? मैं गिरिराज बोल रहा हूँ। जी सर। दादा आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। अरे हुकुम हुकुम। ये आपकी आवाज बड़ी फुल फोर्स में बुलंद यहाँ पे पहुंच रही है। नहीं, मैं सर्वप्रथम गजेंद्र जी को धन्यवाद दूं। उसके पहले बड़े भाई आज जो अपना के नॉट और रिमार्क्स जो भी दिया, वो हमारे जैसे लोगों के लिए भी बड़ा ही अनुकरणीय था। तो मैं हरदीप पुरी जी को, बड़े भाई को भी धन्यवाद देता कि आप कहते हैं कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन आपने तो आज जबरदस्त मारा चौवा छक्का। मैं इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई विनी महाजन जी और पूरे देश से जुड़े हुए सभी कलेक्टर से लेके सभी अधिकारीगण, तो मान्यवर हरदीप पुरी जी ने विस्तृत से एक एक बिंदु पे रखा है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये स्वच्छता का जो 2-2 चल रहा है, स्वच्छता ही सेवा है, इसमें मेरे मन में 2-3 विषय आया है। अगर लगेगा कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अभी कलेक्टर हमारे मेरठ के जो बोल रहे थे, मैं एक रखूंगा सभी के लिए, केवल मेरठ के कलेक्टर के लिए नहीं। ये मीटिंग कीजिए, हम आपको खाली नहीं आप उठना नहीं, हम खाली प्रणाम कर रहे हैं। पंचायतों में जो सेग्रीगेशन घर घर हो रहा है, जो शहरों में आप काम कर रहे हैं, वो सराहनीय है धीरे धीरे, क्योंकि ये स्वच्छता को समझना होगा कि एक दिन का ये कार्यक्रम नहीं है, ये निरंतर चलने वाली है। प्राइम मिनिस्टर को कोटि से धन्यवाद, नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ऐसे विषय को उठाया जो शायद आज तक अछूत रहा था। और मैं समझता हूं ये पीड़ा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को या अधिकारी किसी को होनी चाहिए। जब हमारी बहनें सड़क के किनारे, ये पीड़ा हुआ और निरंतर आप लोगों के द्वारा एक बड़ा काम हुआ शौचालय बनाने का। जैसा कि कलेक्टर ने कहा कि हम ये कर रहे हैं, गांव में कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं। उसके पहले मीना जी कह रहे थे कि हम इन चीजों को करने का काम किया है। मेरे मन में 2 विषय है, शायद गजेंद्र जी मेरे हुकुम, मेरी बात से सहमत होंगे कि असहमत होंगे, और हरदीप पुरी जी, अय्या, विनी महाजन और सभी कलेक्टर। हम नाले के कचरा को तो निकाल रहे हैं, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, सेग्रीगेशन, और गांव में भी कर रहे हैं। लेकिन शहर के अंदर, मैं देसी भाषा में बोल रहा हूं, जो सैलून है, सैलून से जो बाल निकलता है, वो सैलून, अब तो गांव में भी सैलून हो गए, वो बाल नहीं डिग्रेबल है। कभी हमारा ध्यान नहीं गया, कुछ सैकड़ों साल मिट्टी में पड़ा रहता है और जमीन को भी खराब करता, और स्वच्छता में तो नाले को भी कहीं कहीं चौक करता, क्योंकि उस सैलून से निकालते और डाल देते नाले में। तो मेरा उसमें आग्रह होगा 2 बिंदु। हमने एक छोटा सा प्रयोग किया था, लेकिन उसके बाद उस शहर को मैं दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में चला गया कि सभी सैलून में अगर डीएम चाहें तो एक प्रयोग कर सकते हैं। एक
2 पॉट, एक छोटा सा पॉट रख दें जिसमें ब्लेड रहता है, और एक बड़ा पॉट रख दें जिसमें उनके बाल होते हैं। तो जब ये रख देंगे, हमने तो क्या किया था, इस बाल की कीमत भी तय कर दी थी। और एमएसएमई का एक ऑर्गेनाइजेशन है एमगिरी वर्धा, एमगिरी वर्धा ने गौमूत्र और बाल से एमिनो प्रोटीन बनाया, स्वच्छता भी हुआ। माननीय गडकरी जी ने नागपुर में भी उसको बहुत अच्छे ढंग से करके दिखाया। तो अगर हम शहरों में सैलून को टैग करें, और हम लोगों ने तो किया था, एक ऐप के साथ क्या किया था, जो पैसा उनको बाल से आता था उसमें सारे कर्मचारियों का इंश्योरेंस हो जाता था। तो सफाई के सफाई अब बाल खरीद लेते थे जो एमिनो प्रोटीन बनाते थे। और दूसरा, शहरों में आप देखेंगे, मार्केट में देखेंगे, कहीं ऐसा जगह नहीं होता लोगों को पेशाब करने का, यूरिन आउटलेट। तो उसके बाद वो कहीं ऐसे जगह करते, गंदगी का ढेर लग जाता, दुर्गंध देता। क्या उन जगहों पर, शायद हमारे दोनों भाई हंसेंगे, वहां एक डिजाइन है ऑलरेडी, उस यूरिन आउटलेट बनाया जाए और उसके नीचे उसको कलेक्शन का रखा जाए। और ये जब एमिनो बाल के साथ, ये एक बड़ा बिजनेस देखा था नवादा में। तो ये उसके बाद अभी है 300 से 500 रुपए लीटर, लेकिन गडकरी जी हम लोगों ने 200 रुपए लीटर बेचवाया शब्द इसलिए कर रहा हूं कि एक एंटरप्रेन्योर को जोड़ा था। दूसरी बात कहूंगा, जो आप खाद बना रहे हैं बहुत अच्छा, स्वच्छता, अभी तो कलेक्टर ने कहा, एक डीएम ने, कि हम उस पानी को भी रिसाइकिल करके हम उसमें लेते हैं, जो हमने लगाया है, प्रोजेक्ट लगाया है गैस, बायोगैस का, डिग्रेडेबल का, उससे एनर्जी पैदा करते, जो भी सिस्टम। तो एक धन्यवाद के पात्र हैं आप। लेकिन ये खाद जो बन रहा है, इस खाद में टेस्ट करा के कभी डीएम साहब देखे हैं कि इसमें हैवी मेटल कितना है? इसको देखने का काम करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि पूरे खाद में हैवी मेटल होता, लेकिन जब आप टेस्ट कराएंगे, नहीं होगा बहुत अच्छा, होगा तो उसका अल्टरनेटिव उपाय सोचना होगा। और मैं पंचायती राज मंत्री होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश में हम लोगों ने एडवाइजरी ही जारी नहीं किया, बल्कि इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं कि स्वच्छता पर क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा काम है। मैंने शौचालय की चर्चा की, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्लोगन दिया था, पहले शौचालय तब देवालय। हमारे विपक्ष के नेताओं ने कहा, बताइए, ये शौचालय को देवालय से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ बोलते हैं तो वो गरीबों से जोड़ करके देखते हैं, स्वच्छता से जोड़ करके देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं सभी डीएम से कहूंगा कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, पंचायतों में भी अच्छा काम हो रहा है, सेग्रीगेशन का कई एंटरप्रेन्योर आ गए हैं जो एक पैसा नहीं लेते, घर घर जाके कलेक्शन करते और फिर उसको सेग्रीगेट करके उसकी मार्केटिंग करते। जैसा कि हमें माननीय हरदीप पुरी जी ने कहा, 600 करोड़ का ये हुआ।
वो 600 करोड़ का तो नहीं होता, लेकिन प्रोजेक्ट एक पंचायत में ये बड़ा ही सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है कि घर घर से कचरा लेना। ये घर घर से कचरे को सेग्रीगेट करके जब हम लेते हैं तो इसके अच्छे खाद भी बन जाते हैं, और फिर जो प्लास्टिक मेटल आते हैं वो आपने बता ही दिया हरदीप पुरी जी की कितना उपयोगी होता है। अभी तो हमारे विभाग के द्वारा NRLM जो आजीविका मिशन है, दीनदयाल उपाध्याय आजीविका मिशन, ये आजीविका मिशन प्लास्टिक को खरीद करके कारपोरेशन से और उसको सड़क में मशीन से उसके टुकड़े टुकड़े करके जब सड़क बनते तो उसमें वो लोग खरीदते। ये बात सही है कि हम जब वेस्ट टू वेल्थ कहते हैं तो ये बड़ी ताकत है ये स्वच्छता अभियान में। स्वच्छता अभियान के पहले जागरूकता नहीं था। कोई होगा ऐसा पंचायत, ऐसा कारपोरेशन, ऐसा नगर परिषद जो इस काम में लगा होगा, हमें तो नहीं जानकारी है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर तो ये 2-3 सलाह मेरे हैं, और ये सलाह जब आप उतना अच्छा बिजली ले रहे हैं इस कचरे से, और जब आप इतना अच्छा खाद बना रहे हैं कई जिलों में, तो इसकी गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा जाए। और एक नया मैंने कहा कि कोई कलेक्टर इसको करके देखे मुफ्त में। आप हरदीप पुरी जी तो नहीं हंसेंगे क्योंकि एक वरिष्ठ लोगों से बातचीत के समय वो थे, और मैंने भी केमिकल एनालिसिस निकाला आदमी के यूरिन का। इसमें इतने नाइट्रोजन के परसेंटेज है, ट्रेस मिनरल हैं, कि जब वो बाल के साथ मिलेगा तो एमिनो प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ा देगा। गाय के गौमूत्र से ज्यादा इसमें ताकत है, तो स्वच्छता भी होगा और उसके कीमत भी आ जाएंगे, बाल के भी कीमत आ जाएंगे, और एक नए प्रयोग होगा। मैं यही कह करके अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि डीएम साहब ने बहुत अच्छा काम की चर्चा की है, लेकिन मैं भी एक आग्रह किया हूं इसके कोई मॉडल को करके देखें तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं फिर माननीय हरदीप पुरी जी को और माननीय जल संसाधन मंत्री माननीय शेखावत जी को कोटि से धन्यवाद दे रहा हूं कि ये विभाग एक नया क्रांति ला रहा है। ठीक ही कहा डीएम ने कि जब ये स्वच्छता होती है तो स्वच्छता के साथ साथ टूरिज्म भी बढ़ता है, और टूरिज्म बढ़ता है तो समझ सकते हैं उस जिले का जीडीपी में भी योगदान देता है। तो ये कई चीजों से जुड़ा है, फर्टिलाइजर से जुड़ा है, उसके पानी का रिसाइकलिंग से जुड़ा है, जो वेस्ट निकल रहे हैं उसका सेग्रीगेशन मस्ट होनी चाहिए। वो सेग्रीगेशन सोना है, उसको निकाल करके वो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा सुझाव अगर अच्छा लगे तो आप करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। क्या हो गया भाई, आवाज नहीं जा रही है क्या? नहीं आवाज आ रही है दादा, एकदम शेर के हाँ, जैसे तो बोल रहे हैं। हमने तो अपना विराम कर दिया, क्योंकि हरदीप पुरी जी के बाद और उतना ज्ञान मेरे पास नहीं था। जो ज्ञान था मैंने वो रख दिया। ना हम सब अभिभूत हो गए दादा इससे। धन्यवाद। अभिभूत हुए या नहीं, लेकिन मैं शब्दों से अभिभूत हो गया। चलिए विनी जी आगे बढ़ाइए इसको। संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ
अब आगे जुड़ रहे हैं श्री सुमित अत्वानी, डिप्टी कमिश्नर लखीमपुर खीरी से, और संवाद के लिए हम अनुरोध करेंगे परम आदरणीय कैबिनेट मंत्री महोदय श्री जतिन सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मंत्रालय। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, लखीमपुर जिला असम का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है सर अरुणाचल के साथ में, और एक बाढ़ पीड़ित सर जिला है। इस जिले में सर ODF प्लस को लेके क्या क्या काम हम लोगों ने किया है सर, उस पर मैं आपकी दृष्टि चाहूँगा। हमारे जिले में सर कुल मिला के 1124 गांव है सर, जो कि सारे ODF में मार्क कर दिए गए हैं सर, जिसमें 965 सर आज की डेट में एस्पायरिंग है और 159 राइजिंग है सर। हमारा टारगेट है सर कि ये जो स्वच्छता पखवाड़ा हम लोग करेंगे सर, इसमें ये 159 गांवों को सर हम लोग राइजिंग से मॉडल में कन्वर्ट हम लोग इसको कर लेंगे। इसके लिए सर मई महीने में सर एक राज्य स्तरीय सर जिला कलेक्टरों का सम्मेलन मुख्यमंत्री सर ने सर अरेंज किया था। उसमें ODF और स्वच्छ भारत पे सर काफी बारीकी से हमको निर्देश दिए गए थे और स्टेट लेवल से भी काफी सपोर्ट किया गया था। आप सर अगर मई में हमारा स्टेट का परफॉर्मेंस देखेंगे, वो काफी नीचे था सर राष्ट्रीय स्तर पे भी, परंतु पिछले 4 महीनों में सर कड़ी मेहनत करते हुए हम लोग सर आज 99.2% हमारे स्टेट के अंदर सर ODF प्लस हो गया है, और इसमें से अधिकतर गांव सर फिजिकली ODF प्लस मार्क हो चुके हैं। किसी तकनीकी कारण से हम लोग उनको मार्क नहीं कर पा रहे हैं सर। इसके अंदर सर हमने जल आंदोलन का इसको रूप दिया है सर। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सर उसको टिकाऊ करने के लिए जलशाला और जल दूत प्रोग्राम सर हमारे स्टेट ने बनाया है। उसमें सर स्कूल के बच्चों को हम लोग जल की जो महत्ता है और जो सैनिटेशन की महत्ता है उस पर सर हम जानकारी देते हैं। उसके साथ ही सर स्वच्छाग्रही PRI मेंबर्स और गांव के जो लीडिंग सिटीजन्स हैं उन लोगों को साथ में लेकर सर हम लोगों ने एक मीटिंग्स कराई थी, और पिछले 4 महीना में सर हमने एकदम युद्ध स्तर पे सोक पिट्स, गांव में ड्रेनेज, और जो सर पारंपरिक रूप से सर हमारा असम के गांव के अंदर एक पॉन्ड रहता है, उस पॉन्ड को सर डकवीट पॉन्ड में कैसे कराया जा सकता है, उससे कैसे कमर्शियल वैल्यू और गांव घर का सारा ग्रे वाटर उसमें कैसे लेके जाना है, उसके लिए भी सर हमने काम किया। और उसका फलस्वरूप सर आज हम लोग हमारे जिले को 100% सर ODF प्लस कर पाए हैं। और इसी सपोर्ट से सर हम लोग जल्दी जो हमारा टारगेट है दिसंबर 2025 का, उससे पहले हमारे पूरे राज्य को मॉडल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको कहा है सर, और उसी स्तर पे हम लोग काम सर कर रहे हैं। इसी के अंदर सर एक हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, जो आप लोगों ने त्रिस्तरीय प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट गांव के लिए जो एक सर आप लोगों ने ODF प्लस और स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय में जो कार्य रूप लिया है सर, जैसे मिनी MCF, MCF और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, ये इसलिए जरूरी था सर क्योंकि गांव में प्लास्टिक वेस्ट का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था। जैसे शहरों में म्यूनिसिपैलिटी था, बट गांव में वेस्ट कौन देखेगा, इसको सर हम लोग अभी भी फॉर्मलाइज नहीं कर पाए थे। तो अब सर जो मिनी MCF, MCF और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की रूपरेखा तैयार की गई है, उसी को सर हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज ऑर्गेनाइजेशन और CLF इन लोगों की द्वारा सर स्वचालित करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और राज्य स्तर पे सर स्वच्छ भारत मिशन, असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन और सर स्किल डेवलपमेंट मिशन, तीनों जन सर कन्वर्ज होके एक ट्रेनिंग मॉड्यूल और सर एक बिजनेस प्लान तैयार करने का हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि सर इन SHG, VO और CLF को सर कमर्शियल वायबिलिटी भी दिया जा सके, ताकि जो हम ढांचा तैयार करके देंगे सर ये टिकाऊ रूप से और आने वाले कई समय तक सर गांव को प्लास्टिक से मुक्त करके रखे। जैसा मैंने बताया सर, हम एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है सर असम का, तो प्लास्टिक अभी तक गांव में उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, बट इसको पहुंचने से पहले ही सर हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। और सर अभी जो स्वच्छता पखवाड़ा है सर, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ दिन पहले मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के चलते सर एक सेंट्रल VC हम लोग का लिया था। उसी में प्रोग्राम में दिया गया था कि सर ये सेवा पखवाड़े के अंदर ही हर GP के अंदर एक SHG को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सर मोबिलाइज किया जाएगा, जो गांव-गांव घर-घर जाएगा, और वो लोग सर मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत सर मिट्टी भी लेंगे, और जिस गांव में जिस दिन ये कार्यक्रम लिया जाएगा सर, हम लोग उसी गांव में उस दिन स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत सर जैसे शपथ ग्रहण करना है, पद यात्रा करनी है, वहां पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनके द्वारा सफाई करानी है, और उस गांव के अंदर जितने भी सरकारी और सामाजिक प्रांगण है सर उनके अंदर हम लोग सफाई अभियान कराएंगे। और इसके अंदर सर उस एरिया के जितने NCC NSS वॉलंटियर्स हैं उन लोगों को हम लोग इस्तेमाल इसमें करेंगे सर। और किस्मत से सर 2 अक्टूबर हमारा जिला का जिला स्थापना दिवस भी होता है, तो ये पूरा
कार्यक्रम जिस दिन फलबूत होगा सर, उस दिन हम लोग हमारे जिले का स्थापना दिवस भी उस समय सर उत्सव की तरह मना रहे होंगे। तो ये सारे चैलेंजेस को सर हम लोग उसमें इनाम के रूप में सर पुरस्कार करने के लिए हम लोग रूपरेखा तैयार किए हैं। हम सर आपको बताते हुए काफी हर्ष महसूस करते हैं कि लखीमपुर जिला अपना लेगेसी वेस्ट 100% क्लियर किया है सर बायो माइनिंग के थ्रू। और सर आसाम सरकार ने एक मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव करके भी घोषणा करी है, जिसमें शहरी स्वच्छता और सर ग्रामीण स्वच्छता दोनों जो मिशन है, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को कंबाइन करते हुए एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है। इसके अंदर सर जो जिला स्टेट में टॉप करेगा उसको 100 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट अनटाइड फंड के रूप में देगी, जो कि जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में सर अनटाइड रूप से बाकी प्रतिनिधि लोगों के साथ में उनके एरिया में जो कई गवर्नमेंट स्कीम्स हम लोग सर नियम की वजह से नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से भी सर हम लोग गांव-गांव में काफी प्रेरणा लोगों को दे पा रहे हैं। और बहुत लोग सर इस गवर्नमेंट की, हमारी राज्य सरकार ने जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लिया है, उसकी वजह से भी हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है ये बहुत जन आंदोलन और एक टिकाऊ रूप से सर सस्टेनेबल वे में हम लोग इसको कर पाएंगे। बाकी सर जो पखवाड़े के अंदर सर 2 दिन हम लोगों ने जिले में टारगेट किए हैं सर। एक 25 सितंबर हमारा सर अंत्योदय दिवस है, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है। उस दिन सर हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हार्ड टू रीच एरियाज हैं, अरुणाचल बॉर्डर हो गया, नदी में एकदम अंदर में हो गया, वहां पे प्रशासन पहुंच के सर पखवाड़ा ये स्वच्छता ही सेवा का ड्राइव हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और दूसरा सर 27 सितंबर को जो विश्व पर्यटन दिवस है, उस दिन सर हमारे जिले में जितने पर्यटक स्थल हैं सर, वहां पे हम लोग सफाई अभियान करेंगे। और आसपास में सर जो वहां पे समाज है, जो सामाजिक दल संगठन है जो कि वहां पे हमेशा रहते हैं, जिनका प्रेजेंस है, उन लोग को सेंसिटाइज करेंगे, ताकि अभी सर हमारे यहाँ टूरिस्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो इस टूरिस्ट सीजन में पिछले टूरिस्ट सीजन से ज्यादा सफाई हो, और इसी पे सर हम लोग का जोर रहेगा। सर हमको लखीमपुर जिले को अपनी बात आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए और हमको ये मौका देने के लिए मैं सर धन्यवाद देता हूं, और मेरा जो स्पीच है सर मैं यहाँ पे विराम देता हूं। धन्यवाद सर। सुमित जी, आपको सुमित जी, एक मिनट। सुमित जी, आपको और दीपक जी को बहुत सारा धन्यवाद। And it's really inspiring that work what you have done. जो आप लोगों ने काम किया है, निश्चित ही वो अभिनंदन के योग्य है। लेकिन आपने जैसा आपने अभी कहा, दादा आपका माइक म्यूट करना पड़ेगा। दादा मैं हाथ उठाया कि मैं 2 शब्द कहना चाहता था। हाँ जरूर जरूर कहिएगा। आप बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं आप बोल रहे हैं, बोलिए ना। बात मैं बाद में बात कर लूंगा, आप तो बताइए। मैं 2 विषय रखना भूल गया। एक तो धन्यवाद देने के लिए, और दूसरा ये जो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर चलेगा स्वच्छता दिवस, इसमें पूरे विभाग, चाहे आरडी का हो चाहे नगर का हो, सब मिल करके आरडी वाले में तो मैं प्रयासरत हूं कि जो स्वच्छता के लिए शौचालय बना है, क्या वो ओडीएफ होने के बाद चालू है कि ओडीएफ हुआ, सर्टिफिकेट लिया 3 साल 4 साल पहले, और फिर इसका रीसर्वे जरूर होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मैं अपने दिशा के मीटिंग में इस विषय को रखा था एक बार, तो उसमें जो प्रतिनिधि थे पंचायती राज के, उन्होंने उसकी खामियों को रखा था, इसीलिए मैं ये विषय आपके सामने रखा हूं। और दूसरा आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं गया था लद्दाख, जो वाइब्रेंट विलेज के नाम से चाइना बॉर्डर पर, तो मुझे गांव के लोगों ने आरती उतारा आपके कारण। वो 15,000 फीट पर, 14,000 फीट पर आपके नल जल पहुंच चुका था। एक बूढ़ा 80 साल का, उसने आरती उतारा। हम काहे के लिए बाबा इतना? कहा नहीं, मोदी जी को धन्यवाद कहिएगा कि हम जीवन में कभी सोचा नहीं था कि शुद्ध पानी पी पाऊंगा, अभी तक तो ग्लेशियर का पानी। तो मैं सोचा
कि धन्यवाद दे दूं पूरे देश के लोग जो जुड़े हुए हैं। स्वच्छ हर घर नल जल का क्या महत्व है, ये इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यही 2 विषय कहना। मैं बात कर रहा था दोनों डीएम जिन्होंने अभी अपनी तरफ से अपना इंटरवेंशन किया, मेरठ के डीएम दीपक मीना जी और लखीमपुर असम के डीएम सुमित जी। देखिए, मैं दोनों का अभिनंदन करता हूं। आप दोनों ने बहुत अच्छा विषय अच्छे तरीके से किस तरह से अपने जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि हम संपूर्ण स्वच्छता की तरफ अपने गांवों को लेकर के जाएं, इस विषय को आपने बहुत अच्छी तरीके से लिया भी है। और मुझे प्रसन्नता है कि दोनों ही जिले जिन्होंने चर्चा की, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रगति इस दिशा में की है। और मैं मानता हूं कि इन दोनों जिलों ने जिस तरह की चर्चा की है, बातचीत की है, और इससे पहले भी जब हरदीप जी चर्चा कर रहे थे तब नगरीय क्षेत्र के विषय में जो बात हुई है, वो अन्य जिलों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। लेकिन जैसा अभी डीएम लखीमपुर कह रहे थे कि उन्होंने अपने यहाँ पर जो है लिगेसी वेस्ट को एकदम समाप्त कर दिया और पूरे जिले को लिगेसी वेस्ट से मुक्त कर दिया। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपने लिगेसी वेस्ट किसी गांव में होगा, किसी नगर में होगा, जो पहले से वहां पे पड़ा होगा, पिछले 20, 30, 25 साल से पड़ा होगा, उसको डिस्पोज करके आपने क्या किया है उसका? क्योंकि उस वेस्ट का जो 5 साल से भी ज्यादा से अगर पड़ा है या उससे कम से भी होगा तो भी उसका डिस्पोज, उसका सेग्रीगेशन नहीं हो सकता। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और हमने उस लिगेसी वेस्ट को निकाल करके वापस बाद में उसका क्या किया, उसको डिस्पोज किस तरह से किया? एक बार थोड़ा इस पर क्लैरिटी करेंगे तो मुझे लगता है कि दूसरे लोगों को भी इस पर एक प्रेरणा मिलेगी कि आपने किस तरह से इसमें काम किया। सर हम सॉरी सर एक मिनट कंप्लीट। दूसरा, आपने कहा कि आपने ये जो स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के लिए जो प्लानिंग किया है, कि हम किस तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं, जैसा हमने एक्सपेक्ट भी किया, और किस तरह से हम इसको पीपल्स मूवमेंट जो स्वच्छता ओडीएफ के समय में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बना था, उसको हम फर्दर आगे जो है इस कंप्लीट सैनिटेशन के लिए या होलिस्टिक सैनिटेशन के लिए ओडीएफ प्लस के लिए किस तरह से उपयोग करें। और उसके लिए आपने कहा कि हम पदयात्रा करेंगे, शपथ दिलाएंगे, सफाई अभियान कराएंगे। मुझे लगता है कि हमको अब इस समय में, देखिए, हमारी सबकी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है कि सेग्रीगेशन हमारे यहाँ अभी भी सोर्स पर नहीं हो रहा है। हमको सोर्स के बियॉन्ड जो है डेस्टिनेशन पर सेग्रीगेशन की मजबूरी है, और हमारी समस्या का मूल कारण यही है। तो हम कैसे सेग्रीगेशन एट सोर्स के लिए और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, इसको जो है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े को हम इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कैसे लें, इस दिशा में आप लोग क्या सोचते हैं? इन 2 विषयों पर आप अपनी तरफ से जो आपने बातचीत की है उस पर अगर कुछ बताएंगे तो मुझे लगता है कि ठीक होगा। दूसरा, आपने जैसा कहा कि लखीमपुर में हमने 100% लिगेसी वेस्ट को जो है समाप्त किया है, लेकिन दूसरे जिलों में जहां नहीं कर पाए हैं वहां हम इसको किस तरह से एक बार क्वांटिफाई कर सकते हैं और असेस कर सकते हैं कि कहां पे आइडेंटिफाई और जो है क्वांटिफाई, ये 2 कर लेंगे तो हम एक लॉन्ग टर्म गोल भी जो है इस सेवा पखवाड़ा के बियॉन्ड ले सकते हैं। कि अभी हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, जो कुछ हम कर पाए वो ठीक है, लेकिन आने वाले 1 साल में या आने वाले 6 महीने में या बाय 2 अक्टूबर हम कितना कर पाएंगे, या 30 अक्टूबर तक जैसा दादा ने कहा उसको लेकर के हम टारगेट बना के कुछ करें कि हम कैसे जो हमने आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई किया है लिगेसी वेस्ट को, उसके डिस्पोजल का क्या तरीका हो। तो 2 विषय जो आपने कहा, आपने डिस्पोज किया है तो कैसे किया है ताकि दूसरे लोग भी सीखें, और दूसरा कि आइडेंटिफाई करके वो हम कैसे इसको क्वांटिफाई और आइडेंटिफाई करके हम आगे इसके डिस्पोजल का एक लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हैं। इसके ऊपर आपने जो किया है उसको बताएंगे तो शायद दूसरे लोगों को भी इस विषय को आगे करने में, आगे बढ़ाने में फायदा। सर धन्यवाद सर। सर हमारा पहला लेगेसी वेस्ट को सर जो हम लोगों ने डिस्पोज करा था
उसमें सर जैसा माननीय मंत्री महोदय ने पहले पूछा, हमने सर जो उसमें गार्बेज का मिट्टी निकला था सर, उसका हैवी मेटल टेस्टिंग कराया था और उसमें सर हमको अनपरमिसिबल लिमिट का आर्सेनिक सर हमको मिला था। तो इसलिए जो उसमें से मिट्टी निकला सर, उसको हम लोगों ने लैंडफिल और रोड्स के नीचे में सर जो हम मिट्टी गिराते हैं उसमें हम लोगों ने उसको व्यवहार करके डिस्पोज किया। दूसरा सर जो हमारे पास में इनर्ट प्लास्टिक उसमें से निकला था, हमारे पास सर शिलोंग और उमरांगसू मेघालय में सर 2 डालमिया कंपनी के सीमेंट प्लांट है, जहां पे इसको सर RDF रिवाइज डिराइव्ड फ्यूल के तहत सर हमने उनको ट्रक्स के बना करके भेजा है और वहां पे सर उन लोगों ने अपना सीमेंट प्लांट में सर इसको खत्म किया। इस प्रकार से सर हम लोग का जो 70 टन का हमारा लेगेसी वेस्ट था सर, उसको हम लोग खत्म किए हैं। मोस्टली सर हम लोग ट्रॉमल और फिल्टर के बेसिस पे इसको हम लोग खत्म किए थे। पहले उस एरिया में सर हमारा 16 बीघा जमीन पूरा मिट्टी कचरे के गिरफ्त में था। वो मिट्टी भी सर हमारी नदी के ऊपर में थी। लखीमपुर में सर 10 प्रमुख नदियां हैं, तो वो एक नदी के मुख पर थी जो कि NGT के वजह से भी सर हमारे पे प्रेशर था। तो उसकी वजह से सर ये काम को हमने पिछले 1.5 साल में खत्म किया और इस प्रकार से सर हमने इसको डिस्पोज किया है। इसकी कुछ कमर्शियल वैल्यू पे हम लोग ज्यादा चिंतन सर नहीं किए थे। अभी जो नया प्लांट हम लोग सर वेस्ट प्रोसेसिंग का लगा रहे हैं, उसमें सर हम लोग सेग्रीगेशन और वेस्ट टू वेल्थ उस वाली चीज पे हम लोग जा रहे हैं। और सर जो सोर्स सेग्रीगेशन के लिए बोले थे सर, गांव के अंदर सर जो ग्रामीण अंचल का वेस्ट प्रोफाइल और अर्बन एरिया का वेस्ट प्रोफाइल जो होता है, इसमें सर बेसिक डिफरेंस ये आता है कि ग्रामीण अंचल के वेस्ट प्रोफाइल में सर गीला कचरा अभी भी गाँव में तो घर में ही सर निपट जाता है, या तो जानवर को खिला देंगे सर। हमारे यहाँ पे गाय, बकरी, सुअर सबका पालन किया जाता है, तो वो वहीं पे डिस्पोज हो जाता है। और मोस्टली सर जो गांव में लावारस कचरा रहता है वो सूखा कचरा ही सर रहता है। तो वो हम लोग जब मिनी MCF, MCF और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स को सर फंक्शनल कर लेंगे तो गांव में सेग्रीगेशन का इतना इश्यू सर हम फोर्सी नहीं कर रहे हैं। परंतु सर टाउन में निश्चय हमारा सोर्स सेग्रीगेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए सर हम लोग लखीमपुर का जो सदर टाउन है, हेडक्वार्टर टाउन है, उसमें 1 साल से सर हम लोग कॉलेज के जो नेशनल सोशल सर्विस वॉलंटियर्स हैं उन लोगों के थ्रू सर हम लोगों ने घर घर में ड्राइव एक लिया है और अभी सर सोर्स सेग्रीगेशन के लिए डस्टबिन देना भी हम लोगों ने शुरू किया है। और अपने वार्ड्स के आपस में सर हम लोगों ने कंपटीशन एक कराया है कि कितना अच्छा आपका सोर्स सेग्रीगेट होके वेस्ट डंपिंग ग्राउंड या जो हमारा वेस्ट प्रोसेसिंग एरिया है वहां तक आता है। तो ये जो नेशनल सोशल सर्विस का जो हमारे पास में सर एक अच्छा चैनल और फंक्शनल एक्टिव हमारे पास वॉलंटियर्स हैं सर टाउन एरिया में, और मेरे पास 4 म्यूनिसिपैलिटीज हैं सर, चारों ही टाउन के अंदर वो काफी एक्टिव हैं। तो उन लोगों को सर हमने इसमें लीड देने के लिए बोला है और हम लोग सर उनके तहत घर घर और गली गली से पहुंच रहे हैं सर। चलो गुड, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। थैंक यू। चलिए आगे विनी जी। माननीय मंत्री महोदय जी, संवाद में अपने अनुभव शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं स्वच्छता ही सेवा 2023 वीडियो को। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी से एक आह्वान करता हूं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 15-20 दिन पहले से ही स्वच्छता ही सेवा की एक मुहिम चलाएं। हम एक ऐसी स्वच्छता का वातावरण बनाएं, ऐसा स्वच्छता खड़ी कर दें कि 2 अक्टूबर सचमुच में गांधी के सपनों वाली 2 अक्टूबर हो जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत इस मिशन को एक नई रफ्तार देने का आह्वान किया। इस पुकार ने देखते ही देखते एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। लोगों में देश को स्वच्छ बनाने का ऐसा जज्बा दिखा कि हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर उम्र के व्यक्ति ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माननीय प्रधानमंत्री ने भी श्रमदान कर इसमें हिस्सा लिया। इस मुहिम ने हर देशवासी को एक मंच पर ला खड़ा किया, चाहे वो पुलिस बल हो या स्कूली बच्चे, डॉक्टर्स हो या धार्मिक नेता, खेल जगत की हस्तियां हो या कलाकार, सभी देश हित में एकजुट हुए। हम अपने आसपास के इलाके की, अपने आस पड़ोस की सफाई करने के लिए अपने घर वालों, मित्रों, पड़ोसियों को प्रेरित करके एक साथ श्रमदान करें।
स्वच्छता ही सेवा का ये संदेश घर घर तक पहुंचाने के नए नए तरीके अपनाए गए। हर घर तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाने का संकल्प हम सब ने लिया है। देश में चल रही स्वच्छता की ये लहर शहरों से लेकर गांवों तक, स्कूलों से ऐतिहासिक इमारतों तक और धार्मिक स्थलों से लेकर रेलवे स्टेशन और अस्पतालों तक अपना असर दिखा रही है। मीडिया भी इस मिशन को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध है। लोगों की इस सेवा का असर देश भर में दिखने लगा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सब इसी जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और हम सबको विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ भारत का सपना सिद्ध होगा। युगों युगों में अवसर ऐसा आता है, बूंद बूंद मिलकर सागर बन जाता है। हर गांव में, हर नगर में, हर आंगन में, हर घर में खुशियां उमड़ के आएंगी, खुशियां उमड़ के आएंगी। मेरा भारत स्वच्छ बनेगा, मेरी सेवा रंग लाएगी। 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 स्वच्छता के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए स्वच्छता ही सेवा 2023 लोगो, वेबसाइट एवं पोर्टल के लॉन्च के लिए परम आदरणीय कैबिनेट मंत्री महोदयों से अब हम अनुरोध करते हैं। अब हम अनुरोध करते हैं परम आदरणीय मंत्री महोदयों से इंडियन स्वच्छता लीग 2023 एवं सफाई मित्र सुरक्षा शिविर लोगोस के लॉन्च के लिए। इंडियन स्वच्छता लीग ने पिछले साल देश भर के शहरों में एक अनूठी जन भागीदारी की पहचान बनाई है। इंडियन स्वच्छता लीग के दूसरे चरण में देश के सभी राज्यों से 4100 से भी ज्यादा शहरों में शुरुआत हो रही है। स्वच्छता पखवाड़े के उत्सव के तौर पर 17 सितंबर 2023 से पूरे देश में विभिन्न शहर सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन करेंगे। अब हम अनुरोध करते हैं परम आदरणीय मंत्री महोदयों से स्वच्छता ही सेवा 2023 सिटीजन्स पोर्टल के लॉन्च के लिए। परमादरणीय कैबिनेट मंत्री महोदयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम संबोधन के लिए अनुरोध करते हैं परमादरणीय कैबिनेट मंत्री महोदय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मंत्रालय हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। धन्यवाद। मैं अपनी बात करूं उससे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय गिरिराज सिंह जी का, जिन्होंने अपने स्वभावगत प्रयोग धर्मिता जो है उनकी और उसका एक सुदीर्घ अनुभव जो उन्होंने अर्जित किया है पिछले इतने वर्ष, उस अनुभव के आधार पर हम सबका मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय हरदीप पुरी जी का। उन्होंने कहा कि मैं राजनेता हूं नहीं, अभी बाद में बना हूं, इसलिए धीरे धीरे असर हो रहा। मुझे लगता है कि अब ये पीछे बचा हुआ बैकलॉग जो था बोलने का वो पूरा कर रहे हैं। तो बहुत सारा धन्यवाद।
सभी अधिकारीगण जो आज इस स्वच्छता ही सेवा के शुभारंभ के अवसर पर जुड़े हैं, मैं सबको इस पखवाड़े के शुभारंभ की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज से शुरू होने वाला यह पखवाड़ा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में नई क्रांति का सूत्रपात और एक नई जागरूकता और बदली हुई कार्यशैली का सूत्रपात जो हुआ है, उसका परिचायक है। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर, जैसा अभी सभी लोगों ने चर्चा की, 2014 को जो संकल्प लिया गया था कि 5 साल में हम उस संकल्प को पूरा करें, भारत ने सफलतापूर्वक पूरे विश्व को विस्मृत करते हुए, चमत्कार करते हुए उस लक्ष्य को हासिल किया है। और 2019 को जिस दिन भारत ने अपने श्रीमुख से, प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से अपने आप को खुले में शौच से ऐसा मुक्त घोषित किया था, उस दिन जो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था वो ये था कि ये हमारे लिए लक्ष्य नहीं था, मात्र पायदान था। And now we'll move forward from this landing और हम कंप्लीट सैनिटेशन की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में स्वच्छ भारत मिशन घोषित किया था और उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने खुद आगे बढ़कर के इसे लीड किया, उसके चलते हुए न केवल स्वच्छता के विषय को लेकर के अवेयरनेस बढ़ी, अभी तो पूरे देश में एक जन आंदोलन का स्वरूप इसने लिया और उस जन आंदोलन बनने के चलते ही हम इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाए थे। लेकिन ये जानते हुए कि इसको सस्टेनेबल बनाए रखना, जैसा अभी आदरणीय गिरिराज सिंह जी भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं गिरिराज सिंह जी की जानकारी के लिए इस समय पे बताना चाहता हूं कि ये जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ ODF, स्पेशली द टॉयलेट्स विच वर कंस्ट्रक्टेड एट द टाइम ऑफ स्वच्छ भारत मिशन 1, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए उसका फंक्शनैलिटी असेसमेंट हम हर साल करवाते हैं। और उसके साथ साथ में जो स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा पायदान जो SBM2 हम कर रहे हैं, कंप्लीट सैनिटेशन की तरफ जा रहे हैं, उसमें भी सस्टेनेबिलिटी को हमने इनबिल्ट फैक्टर की तरह रखा है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से इसको और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, इसको लेकर के हम सबको काम करना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन से एक तरफ जहां देश में स्वच्छता का नया वायुमंडल बना, स्वच्छता के स्तर और मानकों में सुधार हुआ, उसके साथ साथ में जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी है, छोटे बच्चों की जो मृत्यु होती थी, उस सब में कमी आई है। और उसके चलते हुए निश्चित रूप से हमारे जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वर्ल्ड बैंक जिस तरह का असेसमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि पर हाउस होल्ड जो है वो 50,000 रुपए जो स्वच्छता न होने के कारण से जो बीमारियां होती थी उस पर जो खर्च होता था, वो खर्च में कमी भी आई है। तो अगर इसका रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया में शायद कोई व्यापार व्यवसाय ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा, इसके चलते हुए पूरे विश्व भर में भारत की जो छवि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व भर में बदली है, उसमें बहुत बड़े फाउंडेशन स्टोन का काम जो है वो इस स्वच्छ भारत मिशन की सफलता ने किया है। खुले में शौच से मुक्ति की ऐतिहासिक सफलता के बाद में जब हमने कंप्लीट सैनिटेशन की दिशा में काम करना प्रारंभ किया, तो एक बार लगता था कि बहुत बड़ी चुनौती हम सब ने हाथ में ली, कि सॉलिड वेस्ट को लेकर के, लिक्विड वेस्ट को लेकर के, सॉलिड वेस्ट के डिफरेंट वर्टिकल्स, प्लास्टिक वेस्ट, फीकल स्लज मैनेजमेंट एंड गोबर का जो है वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इन सब को लेकर के जो चुनौतियां थी, वो लगता था कि बहुत मेहनत टास्क हम सब लोगों के हाथ में। लेकिन आज मैं गर्व के साथ में कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के प्रेरक मार्गदर्शन के साथ में हम जिस तरह से हमने काम किया है, उसके चलते हुए निश्चित ही हमने देश में कुल मिलाकर के जो 6 लाख गांव है, उनमें से लगभग 75% गांव, 4,39,850 गांव तक हमने किसी न किसी एक ब्रैकेट में क्वालिफाई करते हम ODF प्लस की कैटेगरी में अपने गांवों को ला पाए। लगभग 1 लाख के करीब ऐसे गांव हो गए जो मॉडल विलेजेस बन गए। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब DM से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये कमिटमेंट लिया है कि स्वच्छता ही सेवा में जो हमारे राइजिंग विलेजेस हैं,
उनको हम मॉडल विलेजेस की तरफ लेकर के जाएंगे। निश्चित रूप से इस तरह का संकल्प यदि लेकर के कि हम जो है एस्पायरिंग से राइजिंग में लाएंगे, राइजिंग से मॉडल तक लेकर के जाएंगे, ये अगर इस दूसरे फेज में हम इस संकल्प को लेकर के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के समय में इस दृष्टिकोण से काम करते हैं तो निश्चित ही हम सफलता कह सकेंगे कि ये स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा जो है वो सफल हुआ है। कुछ महीनों में देश के लगभग सब गांव जो है ओडीएफ प्लस की किसी न किसी कैटेगरी को क्वालिफाई कर लेंगे। इसलिए अब हमने जो क्वांटिटेटिव रेस थी उसमें बहुत प्रगति की है, लेकिन अब हमको क्वालिटेटिवली इसको इंप्रूव करते हुए इनको कैसे सस्टेनेबल बना सकें इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मैं आदरणीय हरदीप पुरी जी विराजा हैं और दादा भी यहाँ सुन रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए इतना बताना चाहता हूं कि पिछले इस स्वच्छ भारत मिशन का जो दूसरा पायदान था SBM2 में हमने अब तक 1,76,000 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हैं जहां पे अपशिष्ट का या कचरे का संग्रहण होता है और उसका सेग्रीगेशन होता है। 3,13,000 से ज्यादा व्हीकल्स देश में रूरल से एरिया में इस तरह के काम कर रहे हैं, जो कचरा घर से उठा करके और ऐसे सेंटर्स तक लाने के ऊपर काम करते हैं। 1.5 लाख गांवों में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इस पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है और 22 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बिटुमिनस सड़क निर्माण या सीमेंट उत्पादन के लिए अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग करना प्रारंभ किया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने इसके साथ में जोड़ने में सफलता प्राप्त की और उसके चलते हुए महिलाओं के आमदनी के अवसर निश्चित रूप से बढ़े और भारत को कचरा मुक्त करने की दिशा में इस दृष्टिकोण से हम काफी पायदान आगे चढ़ पाए। अब ये जो पखवाड़ा हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, इस पखवाड़े में हमको अपने जिले में, अपने क्षेत्र में इस तरह के संकल्प को लेकर के कि हम इस 15 दिन के समय में कम से कम एक टारगेटेड अप्रोच के साथ में काम करेंगे। आदरणीय विनीत जी ने जैसा रूपरेखा रखते हुए कहा था, हालांकि कुछ टेक्निकल हिंड्रेंस की वजह से उस समय हम लोग शायद डिस्कनेक्टेड थे, लेकिन जितना मैं समझ पाया कि हम लिगेसी वेस्ट को आइडेंटिफाई करके इस 15 दिन में उसके निपटान की दिशा में प्राथमिकता के साथ में काम करें तो निश्चित ही एक बड़ा अवसर हो सकता है जब हम इस संकल्प को लेकर के इस दिशा में आगे बढ़े। और जैसा अभी आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने कहा कि 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक फिर राष्ट्र में इस तरह के सेवा पखवाड़े को लेकर के अब जब देश भर में इस पर काम होगा, हम इन दोनों जो है स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा का जो पखवाड़ा जो अभी हम कर रहे हैं ये और बाद में 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जो काम करेंगे, इन दोनों को एक साथ जो है जोड़ करके हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी किस तरह से बना सकते हैं इसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ आदरणीय हरदीप पुरी जी और उनके विभाग के माननीय सचिव मनोज जी सब लोग बैठे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ इसमें कि देखिए, शहरों के पास में कैपेसिटी भी है, सरप्लस कैपेसिटी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन उनके पास में स्पेस का कांस्टेंट है। गांव के पास में कैपेसिटी की कमी है लेकिन स्पेस अवेलेबल है। मुझे लगता है कि हमको इस स्वच्छता ही सेवा के अवसर के समय गांव और शहर की जो बॉडीज हैं, अर्बन म्युनिसिपल बॉडीज होगी और जो रूरल जो पंचायत बॉडीज हैं, इनके बीच में हम स्वच्छता के विषय को लेकर के कन्वर्जेंस मैक्सिमम कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए भी इन 15 दिन में एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए ताकि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बेहतर परिणाम दे सकें। इस दृष्टिकोण से भी चिंता करने की, बातचीत करने की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के लेवल पर बातचीत करने की आवश्यकता है। मैं आदरणीय हरदीप पुरी जी से भी आग्रह करूंगा कि उनका विभाग भी इसमें बात करे। हमारे यहाँ भी आदरणीय सचिव विनीत जी बैठी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप और मनोज जी दोनों बैठकर अगर इस विषय में कैसे कन्वर्जेंस को और ज्यादा रोबस्ट किया जा सकता है, कैसे उसको और अधिक आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ काम कन्वर्जेंस पे हुआ है, जैसे फीकल सर्च को लेकर के, डिस्पोजल को लेकर के हमने कुछ स्टेप्स कन्वर्जेंस की दिशा में आगे लिए हैं, लेकिन इसको और फर्दर स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है, इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है। देखिए, स्वच्छता ही सेवा का पखवाड़ा मात्र एक औपचारिकता बनकर के न रहे। ये ठीक है, हमको 15 दिन में करना है, एक दिन पदयात्रा निकालनी है, किसी गांव में एक दिन छोटी सी पदयात्रा निकलती है,
कहीं सिंबॉलिक किसी कॉलेज ने जाकर के बच्चों को हमने कहा है आधा एक घंटा उन्होंने कुछ काम किया है और वापस आए हैं। नो डाउट उसके होने और करने का भी कहीं ना कहीं प्रभाव होता है, लेकिन हम कैसे इफेक्टिव और जो है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में काम करें ताकि इस 15 दिन का परिणाम पूरे देश में दिखाई दे, ग्राउंड पे दिखाई दे, फिजिकली दिखाई दे। इसके लिए अगर हम प्लान करेंगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है दोनों ही विभाग के सचिवों को और जो स्वच्छता के मिशन डायरेक्टर्स हैं वहाँ अर्बन साइड में आई थिंक रूपा जी इसको देखती हैं और हमारे यहाँ जितेंद्र जी देखते हैं, दोनों मिलकर के एक बार कैसे हम एक पूरी ताकत के साथ में इसको खड़ा कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हमको देखने और आगे काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में जैसा अभी वीडियो में दिखाया था कि हम आइकॉनिक प्लेसेस गांव के और शहर के जितने भी आइकॉनिक प्लेसेस हैं, चाहे वो गांव का बस स्टैंड होगा, गांव का हॉस्पिटल होगा, गांव का मंदिर होगा, गांव का तालाब होगा, उससे लेकर के शहर के सारे ऐसे जो है प्लेसेस हैं जहां पब्लिक फुटफॉल होता है, हम टारगेट करके एक बार अपनी फोर्सेस को, से कॉलेज है उसको हमने एक पर्टिकुलर जगह असाइन किया है, कोई एक स्कूल है उसको हमने एक पर्टिकुलर मंदिर असाइन किया है कि तुमको इस पर काम करना है। अगर हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे, उसका कोई डिजाइन अगर बना दें और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इसमें साथ में सहयोग करे तो हम शायद बेटर रिजल्ट्स इसके ले पाएंगे, जिस रिजल्ट्स को हम बाद में भी क्वांटिफाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ में जो वाटर बॉडीज हैं, उन वाटर बॉडीज पर हम किस तरह से इस 15 दिन में काम कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दोनों मिलकर के इस पे कैसे वाटर बॉडीज को आइडेंटिफाई करके उनके पास में पड़े हुए बहुत सारे वेस्ट, आई कैन टेल यू विद माय ऑनेस्ट एक्सपीरियंस के शहर की बावड़ियों को कचरा घर बना दिया गया, उसके अंदर कचरा पड़ा है। हम संकल्प लेकर के कि इस वाटर बॉडी को हम रिवाइव करेंगे, इसके कचरे को, इसको लीगेसी वेस्ट को मुक्त करेंगे, इस तरह का भी अगर हम आइडेंटिफाई करके कुछ काम करें तो निश्चित उसका प्रभाव जो है वो धरती पर दिखाई देने लगेगा। क्योंकि जो हम चर्चा करते हैं कि हमने अब इस लेवल को अचीव कर लिया है कि हम 76% तक कचरे का निपटान करने में कामयाब हो गए और 100% की तरफ बढ़ रहे, तो हमको निश्चित ही और ज्यादा जो है फोकस्ड अप्रोच के साथ में अब काम करना पड़ेगा। जेनेरिक हमने काम किया तब हम इस मुकाम तक पहुंचे, लेकिन अब हम फोकस तरीके से काम करें। इस स्वच्छता ही सेवा के पखवाड़े को एक तरफ हम किसी सेवा के साथ में जोड़ करके पीपल्स मूवमेंट बनाने के लिए काम करें, लेकिन साथ साथ में हम जहां हमारा इस तरह का लीगेसी वेस्ट अभी भी है उसको आइडेंटिफाई हम कैसे करें और उसको क्वांटिफाई करके उसकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाने के लिए इस 15 दिन क्या का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही हमारा ये श्रेय जो है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, इसको सेलिब्रेट करना, इसको बनाना, लोगों को साथ इसको जोड़ना। एक तरफ ये निश्चित ही हमारा जो स्वच्छता का संकल्प है, इसकी सस्टेनेबिलिटी में इस तरह का ये वार्षिक आयोजन बहुत बड़ा योगदान करता है, उसको रीइंफोर्स करता है, उस कमिटमेंट को वापस रीबिल्ड करने का काम करता है। लेकिन साथ साथ में अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही हमें इसका लाभ होगा। मैं एक बार फिर आदरणीय हरदीप पुरी साहब का, आदरणीय गिरिराज सिंह साहब का और आप जुड़े हुए सभी अधिकारियों का अभिनंदन करते हुए हम इस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े को यशस्वी भी बना सकें, हम इसको प्रभावी भी बना सकें, इस अपेक्षा के साथ में आप सबके एक्टिव पार्टिसिपेशन और सहयोग की अपेक्षा करता हूं। बहुत सारा धन्यवाद। परम आदरणीय कैबिनेट मंत्री महोदय का हमारे मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए अब हम धन्यवाद संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय सचिव श्री मनोज जोशी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। नमस्कार। आदरणीय मंत्री श्री शेखावत जी ने कहा जैसे हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र वाले, खास तौर पे जो शहरों के आसपास के क्षेत्र हैं, अर्बन एरिया, उसमें हमें मिलकर काम कर रहे हैं और आगे और भी करने की जरूरत है। पिछले 9 सालों में स्वच्छता का जो पब्लिक मूवमेंट है उसका रिजल्ट ये है कि अब लोग इधर उधर कचरा फेंकते नहीं हैं, वो जो कचरा कलेक्ट करने वाले आते हैं उनको देते हैं, ठीक से उसका कलेक्शन हो रहा है। अब जो खामियां हमारी तरफ से जो भी हो रही हैं वो लोकल बॉडीज के जो कलेक्शन सिस्टम, प्रोसेसिंग सिस्टम, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो जन आंदोलन अब इसके लिए जरूरत है कि हम अपने जो लोकल बॉडीज हैं
उनको एनकरेज करें, उनके साथ मिलके काम करें ताकि वो ढंग से कचरे का कलेक्शन कर सकें, प्रसंस्करण कर सकें, सोर्स सेग्रीगेशन पे इंसिस्ट कर सकें। लोग सोर्स सेग्रीगेशन करने को तैयार हैं अगर कचरा लेने वाला उस पर थोड़ा भी इंसिस्ट करता है। तो हमारा एक्सपीरियंस यही है कि जो भी म्युनिसिपल बॉडी जहां पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और जनता का दबाव होता है वो अच्छा काम कर पा रही हैं। तो एक ये जो मैनेजमेंट के लेवल पे हम पहुंच गए हैं उसके लिए जन आंदोलन बहुत जरूरी है। और साथ में जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, रेल की पटरियों के दोनों तरफ, सड़कों हाईवेज के दोनों तरफ, टूरिस्ट प्लेसेस, बीचेस पे जो कचरा पड़ा होता है वो पीरियोडिकली हमें हटाना जरूरी है। मैं आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी, श्री शेखावत जी, श्री हरदीप पुरी जी, श्री कौशल जी, श्री बिसेश्वर टूडू जी और हमारे साथ जुड़े सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, म्युनिसिपल कमिश्नर्स और सभी लोग जो स्वच्छता से जुड़े हुए हैं सभी मिशंस में, राज्यों में, ग्रामीण और शहरी, और साथ में ही हमारे दोनों तीनों मंत्रालय के स्वच्छता मिशन के जो सभी ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं, मीडिया का, कि हमारे साथ जुड़े और इसी तरह अगले 2 सप्ताह और उसके बाद भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी के साथ हम स्वच्छता के वार्षिक उत्सव स्वच्छता ही सेवा 2023 के आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। थैंक यू चीफ। Your meeting has ended.